ডিজিটাল যুগেও বইয়ের ঘ্রাণে মাতোয়ারা দুর্গাপুর। ওজনে বিক্রি হচ্ছে হাজারো গল্পের মলাট। বর্তমানের যান্ত্রিক সময়ে যখন মানুষের আঙুলগুলো স্মার্টফোনের স্ক্রিনে বন্দী, ঠিক তখনই দুর্গাপুরের বুকে এক টুকরো স্নিগ্ধতার ছোঁয়া নিয়ে হাজির হয়েছে বুকস বাই কিলো মেলা। পার্বণী ব্যাংকোয়েট হলের 4 দেওয়ালের মাঝে এখন রাজত্ব করছে কেবলই বইয়ের সুবাস আর হারানো শৈশবের স্মৃতি। মেলায় পা রাখলেই চোখে পড়ে থরে থরে সাজানো বই, কোনোটা রহস্যে ঘেরা, কোনোটা ভালোবাসার গল্পে ঠাসা, আবার কোনোটা ইতিহাসের পাতায় মোড়া। তবে এই মেলার বিশেষত্ব অন্য জায়গায়। এখানে বই বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি দরে। মাত্র ৩৯৯ টাকা খরচ করলেই 1 কেজি ওজনের এক গুচ্ছ পছন্দের বই নিজের করে নেওয়া যাচ্ছে। মেলায় আসা এক আবেগপ্রবণ বইপ্রেমী জানান, আজকাল সবকিছু ডিজিটাল হয়ে গেছে, কিন্তু বইয়ের পাতা উল্টানোর যে একটা আলাদা অনুভূতি, তা কি আর মোবাইল ফোনে পাওয়া যায়? এখানে এসে মনে হচ্ছে যেন নিজের হারিয়ে যাওয়া ছোটবেলাকে খুঁজে পেলাম। আয়োজকদের মতে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ ফিরিয়ে আনাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। যদিও বর্তমান সংগ্রহে ইংরেজি সাহিত্যের প্রাধান্য বেশি, তবুও বইপ্রেমীদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি প্রমাণ করে দিচ্ছে যে আজও মানুষ ছাপানো অক্ষরের জাদুতে বিশ্বাসী। এক নজরে তথ্য। সময় 20 থেকে 24 ডিসেম্বর পর্যন্ত। মূল্য ৩৯৯ টাকা প্রতি কেজি, নির্বাচিত বিভাগ। বিশেষত্ব: হিন্দি বইয়ের ওপর 20% ছাড় এবং শিশুদের জন্য বিশাল সংগ্রহ। উৎসবের মরশুমে দুর্গাপুরবাসীদের জন্য এটি কেবল একটি মেলা নয়, বরং জ্ঞানের আলোয় নিজেকে নতুন করে চেনার এক সুযোগ। আগামী 24 তারিখ পর্যন্ত চলবে এই বইয়ের মহোৎসব। আপনিও কি তৈরি আপনার বুকশেলফকে এক নতুন প্রাণ দিতে? আমরা আজ পৌঁছে গেছি দুর্গাপুরের পার্বণে। এমন একটা খুব সুন্দর একটা আয়োজন হয়েছে অনুষ্ঠানে, যেটাও দুর্গাপুরের বুকে প্রথম। আমরা বিভিন্ন রাজ্যে দেখেছি এরকম ধরনের ফেয়ার, বাট দুর্গাপুরের কাছে এটা একেবারেই অনন্য। কিলো দরে বুকস আপনাদের সামনে হাজির করেছে। বিভিন্ন টাইপের বুকস, কোথাও হরর, কোথাও মাইথোলজিক্যাল, কোথাও সায়েন্টিফিক বুকস। বর্তমান সময়ে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে আমাদের বই পড়ার অভ্যেসটা অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে। এই ধরনের উদ্যোগ সেই বই পড়ার অভ্যেসটাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা একমাত্র। দুর্গাপুর বুকে এই ধরনের ফেয়ার যেমন পাঠকদের বুকসের প্রতি আগ্রহ বাড়াবে, ঠিক তেমনিভাবেই এই ধরনের ফেয়ারের মাধ্যমে নবপ্রজন্মের কাছে বই পড়ার ইচ্ছে বা অভ্যেসটা, সেটাও হয়তো বাড়াতে সাহায্য করবে। সেই পার্বণেই আমরা উপস্থিত হয়েছি আজকের এই বুক ফেয়ার, এই অনন্য ধরনের বুক ফেয়ার নিয়ে। যদি বুকস তারা রাখতেন তাহলে হয়তো অডিয়েন্সটা আরও বাড়তে পারত। তবুও এই দুর্গাপুর জুড়ে এখন শুধু উৎসবের মেজাজের মধ্যেও এই ধরনের বুক ফেয়ার অবশ্যই ছাপ রেখেছে। শুধু তাই নয়, এই ধরনের বুক ফেয়ারে উপস্থিত হয়েছেন অনেক মানুষ। অর্থাৎ শুধু এন্টারটেনমেন্ট নয়, মানুষ তার জ্ঞান অন্বেষণের জন্য খুঁজে নিচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বুকস। তাই একদিকে বিভিন্ন ফেয়ারের মধ্যেও এই ধরনের ফেয়ার অবশ্যই একটি ছাপ রাখলো বলে দুর্গাপুরের বইপ্রেমীরা মনে করছে। তাই এই ধরনের বুকস এখন চলবে 20 থেকে 24 তারিখ অবধি। দুর্গাপুরের বিভিন্ন মানুষজন যারা বইপ্রেমী, হয়তো সবার কাছে ইনফরমেশন হয়তো নেই বা হয়তো আছে। আমরা আশা করব, আমি বেসিক্যালি যারা এই বই নিয়ে একটু পড়তে ভালোবাসে, আশা করব যাতে সবাই উপস্থিত হন এবং বই পড়ার অভ্যেসটাকে যাতে আরও বাড়ানো যায় সেই চেষ্টা করবেন। তো এই 4 দিন দুর্গাপুর জুড়ে चलবে এই ধরনের ফেয়ার। तो आप लोग क्या फीचर्स लगाया है इस फेयर में? इस फेयर में हर तरह के बुक्स हैं, जैसे कि बच्चों का सेक्शन हो गया, बड़ों के लिए उनके स्टोरीज हो गई, फिक्शन हो गया, गेमिंग बुक हो गया, मांगाज हो गए, और बहुत ऐसे ऐसे बड़े बड़े राइटर्स के बुक हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस में भी हैं, और हमारे केजी के सेक्शन पे भी है।
दुर्गापुर से पहले आप लोग कहाँ का हमारा इस फेयर दुर्गापुर में से किए? जस्ट पहले आसनसोल में भी हुआ, ओके। आसनसोल से पहले यूपी में हुआ, यूपी से पहले फिर धनबाद आइशम। अच्छा, ये मनवाया किस लिए फेयर करना चाहिए? फेयर करने का मतलब है कि हर वो किताबें जो होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं, वन टाइम यूज़ होने के बाद वो कुछ लोग दूसरों को पढ़ने के लिए सेल कर देते हैं या फिर डोनेट कर देते हैं, उससे चीज़ों को हम लोग कलेक्ट करके या 399 पर के जी के हिसाब से सेल करते हैं, ताकि वो लोग और बच्चे जो नहीं खरीद पाते, जो नहीं परचेस कर पाते हैं, वो आकर के हमारे पास बुक्स वगैरह ले सकते हैं। इस टाइम में देखा गया कि डिजिटल वर्ल्ड में बुक्स पढ़ने का जो हैबिट है वो ख़त्म होने की कगार पे है, तो आप लोग बहुत सारी जगह पे फेयर किए, हाँ, कैसे रिस्पांस मिला आपको? रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिला। ये एक मिथ्य है कि लोगों को कि डिजिटलाइजेशन की वजह से, फ़ोन की वजह से कि बुक के पीछे इंटरेस्ट ख़त्म हो गया लोगों का। जब लोग देखते हैं फेयर को और बड़ी-बड़ी किताबें और क्या बोलते हैं, बड़े-बड़े राइटर्स और उनके हाँ, मतलब बुक्स को ऐसे टच करना, मतलब एक अटैचमेंट जोड़ देता है इसके राइटर के साथ। खोल करके पढ़ना, ये आपको मतलब डिजिटलाइजेशन दुनिया देखें, अगर फ़ोन की दुनिया देखें तो बहुत बड़ी है। आप जितनी खोजेंगे उसमें उतना मिलेगा, और आपको क्या करता है वो इन सब चीज़ों से दूर करता है। और आप जब बुक को पकड़ते हैं तो ये अपनी दुनिया में लेकर के आता है, ठीक है, और आपको एनवायरमेंटल की जानकारी देता है। ऐसा बोलते हैं बहुत कुछ लोग, जो जो बुक्स पढ़ते हैं वो लोग क्रिएटिव भी ज़्यादा होते हैं, हाँ, तो एक ऑब्वियसली इनोवेशंस भी आते रीज़न क्या हैं। आता है कि जैसे आप फ़ोन पे बोलते हैं कि हम बुक पढ़ते हैं, नोटबुक वगैरह या किंडल वगैरह डाउनलोड करके पढ़ते हैं, तो पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि आप पढ़ तो रहे होते हैं, फटाक से नोटिफिकेशन, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो फिर क्यूरियोसिटी हो जाता है वहाँ जंप करने का। मतलब डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा होता बहुत है। ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ नोटिफिकेशन ही नहीं, अचानक से कोई कुछ पूछ दिया तो आप तुरंत फ़ोन उठा करके देख लेते हैं। रिमेम्बरिंग पावर खत्म हो गई हमारी। करेक्ट। अगर आप बुक पढ़ते हैं तो रिमेम्बरिंग पावर मतलब कितने सालों से आप लोग ये इस टाइप के फेयर कर रहे हैं? हम लोग का 4 साल से चल रहा है, ओके। लेकिन कोविड के बाद थोड़ा बड़े पैमाने पे करने लगे। वैसे कोविड से देश पहले में छोटा बहुत सारे ऐसा ऐसा फेयर हो रहा है, तो उसके साथ आप लोग क्या कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब अलग अलग एक कनेक्टिविटी, इनिशिएटिव्स? बिना कनेक्टिविटी का कुछ नहीं चलता है सर, हर जगह से कनेक्टिविटी है। और अ, हमारा भी एक स्टार्टअप है तो उसको भी अपने हिसाब से चलाना पड़ता है। आप लोगों का कंपनी का यही काम है कि बुक्स कलेक्ट करना और बुक्स को सेल करना, या कलेक्ट करना, और आगे चल कर के बहुत कुछ होने वाला है जो कि हम लोग अभी एक रिवील नहीं सजेशंस करना आपको चाहते। देना चाहता हूँ कि दे सकते हैं। वन टाइप ऑफ लैंग्वेज का बुक्स ही अवेलेबल है यहाँ पे, मतलब बहुत सारे वो ऑडियंस के लिए ये नहीं हो रहा ऐसा है, है कि हम लोग अभी यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे क्या है कि हम लोग को बंगाली को जो लैंग्वेज है उसकी जानकारी उतनी अच्छे से नहीं है, ठीक है, और मतलब कौन कौन राइटर, लोगों का क्या डिमांड है, वो सब जानने के लिए ही हम लोग पहले स्टार्ट किए तो हैं। करेक्ट करेक्ट ठीक है, करेक्ट करेक्ट। अब जैसे आप आए, आप पूछे बांग्ला बुक है या नहीं है, तो हम पूछेंगे आपकी कौन से राइटर की जानकारी है, तो आप हमको बताते हैं, तो मतलब हम कलेक्शन की वजह से आप लोग थोड़ा इन्फॉर्मेशन नोट डाउन भी करते हैं, उन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं, जैसे कि पता चले कि कौन कौन सा राइटर और एक्चुअली कौन-कौन ये से भी बुक्स एक आपको वगैरह। देखना चाहिए कि हिंदी राइटर्स का, मतलब इंडियन राइटर्स का भी बुक्स ज़्यादा अवेलेबल होना चाहिए। है, ऐसी बात नहीं कि है, लेकिन देखिए आप तो अभी कुछ देर पहले बोले कि डिजिटलाइजेशन की दुनिया में बुक्स पढ़ना कम हो गया है, तो लिखने वाले भी उसी हिसाब से कम हैं, ठीक है, और जो लिखते हैं ना वो भी डिजिटल की दुनिया में घुसने लगे हैं। तो लेकिन वैसे भी नहीं है, अभी नई नई किताबें भी हमारे पास जो आते हैं लोग, जो अखबारों में लिखते हैं, अखबारों में नोट करवाते हैं, उन सब के कुछ कुछ लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा बुक्स है पब्लिश किया हुआ है, और उनका भी कुछ बुक्स हैं यहाँ पे। ओके। नमस्ते, देखा है इंडियन राइटर्स का है कुछ? इंडियन कुछ नहीं, बहुत है इंडियन राइटर्स। अच्छा, एक चीज़ है, आप लोग कितने दिनों के लिए दुर्गापुर में ये फेयर चलेगा? दुर्गापुर में हमारे 20 to 24 दिसंबर तक यहाँ पे ओके। है, उसके बाद हम लोग कहीं और चलेंगे। मतलब सारे स्टेट में ही आप लोग घूम रहे हैं, मैंने हाँ, अभी हम लोग बस घूम रहे हैं, मतलब सेल लगा करके। तो अभी लोग रिस्पांस रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है हमारे यहाँ का, दुर्गापुर का रिस्पॉन्स और आसनसोल का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है।
यहाँ के लोगों के साथ बिहेवियर, उनका अटैचमेंट। एडुकेशन बुक्स के लिए आप लोगों का कोई अलग सोच है? हाँ, उनके लिए भी अलग अलग सोचें, जैसे बहुत कोई पढ़ नहीं पाते, पढ़ने के बाद वो या तो सेल करते हैं या फिर करेक्ट। पढ़ लेने के बाद वो सेल कर देते हैं या फिर या हम्म, डोनेट कर देते हैं, जो भी है। तो आप वो लोग कलेक्ट अपना- करते हैं? हाँ, अभी इस पे सेटअप डाले नहीं है, इसका सेटअप हम लोग डाल रहे हैं ताकि उनसे बुक तो हमारा कोई ऑडियंस भी अगर ये सोच के कुछ बुक सेल करना चाहते हैं तो आपके साथ? अभी हम उस वो वाले पोर्शन पे बात नहीं करना Okay. चाहेंगे, क्योंकि वो हमारा एक अलग पोर्शन तैयार हो रहा है। ओके ओके, अभी हम बस जो हमारे पास वो कलेक्शन आया हुआ है हम्म, उनको सेल होगा। ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता है, कंपनी का नाम? फैमिली बॉक्स। रेबली बॉक्स। ये ऑफिस कहाँ पर है आपका? ये हमारा ऑफिस धनबाद में। धनबाद में। थैंक यू।